प्यारे बच्चों, आइए डिराइव करते हैं रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। Cp क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कितनी हीट होती है ये? Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant pressure। और Cv क्या होती है? It is the molar specific heat of a gas at constant volume। ये कितनी हीट होती है? It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant volume। और इनको Cp को अगर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, तो इसको हम लिखते हैं स्मॉल Cp। दिस इज कॉल्ड एज ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। ये होते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। और Cv को अगर हम डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, सो हमारे पास आता है स्मॉल Cv। स्मॉल Cv क्या है? ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए रिलेशन डिराइव करते हैं बिटवीन Cp एंड Cv। फॉर दैट कंसिडर 1 gram mole of an ideal gas in a cylinder which is fitted with a frictionless piston. Let P, V and T are the initial pressure, volume and temperature of the gas respectively. Let this gas is first heated at constant volume। कैसे करेंगे? सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन होता है, पिस्टन के ऊपर वेट्स रखे जाते हैं ताकि पिस्टन ऊपर ना उठे। Let dt is the small increase in temperature। अब जब हीट करते हैं तो कुछ हीट सप्लाई की जाती है। Let dq is the amount of heat supplied to the gas while heating at constant volume। And let us say that du is a change in internal energy of the gas। Here it is increase in internal energy and dw is the external work done। चलिए लगाते हैं thermodynamics का first law। According to first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw। अब dq कितना होता है? हमने पढ़ा था q is equal to m into c into delta t। m mass है, c specific heat and delta t change in temperature, rise in temperature here। So q को क्या लिख सकते हैं? dq को यहाँ पर लिखेंगे m is 1 mole। We have considered 1 mole of the gas। specific heat यहाँ पर molar specific heat of the gas at constant volume Cv। और increase in temperature कितना है? dt। तो dq के लिए हम लिख लेंगे Cv into dt equal to increase in internal energy du plus work dw can be proved to be equal to p dv। dv is change in volume। अब क्योंकि the gas is being heated at constant volume, therefore dv is equal to 0। change in volume 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी Cv dt
इक्वल टू डी यू, या लिख लेते हैं डी यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी। अब क्या करें, लेट द गैस इज नाउ हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। Through same increase in temperature, that is dT. Now let the heat supplied this time is dQ dash. dQ dash is the heat supplied when the gas is being heated at constant pressure. अब क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज सेम है, dt है, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इस केस में भी du होगी। du is increase in internal energy and let us say that the dw is the work done। और हम इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, dq डैश इज इक्वल टू du प्लस dw। dq डैश को क्या लिख सकते हैं, dq डैश इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, मास 1 मोल, स्पेसिफिक हीट कौन सी आएगी, specific heat, molar specific heat of the gas at constant pressure, because the gas is being heated at constant pressure। increase in temperature dt, तो हम यहाँ लिखेंगे Cp into dt equal to du सेम प्लस इसको लिख लेते हैं PdV। आप du की जगह क्या लिखेंगे, du की जगह यहां से लिख लेते हैं Cv इंटू dt प्लस Pdv माइनस Cv dt इक्वल टू P इंटू dv। यहां से Cp माइनस Cv dt कॉमन आ जाएगा इक्वल टू P dv। We know that for 1 mole of an ideal gas Pv is equal to RT। Well, R is equal to 8.31 joule per mole per Kelvin। This is called as universal gas constant। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। With respect to temperature T, ये प्रोडक्ट है दो वेरिएबल्स का P और V का। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू R कांस्टेंट है, ऐसे ही लिख लेंगे डेरिवेटिव ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू T टेम्परेचर। अब क्या है कि प्लस because the gas is being heated at constant pressure, therefore dp क्या है, change in pressure, change in pressure क्या होगा, 0 होगा। तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा इक्वल टू R। यहाँ से P इंटू dV इज इक्वल टू ये dt इधर जाके R इंटू dt। अब इस इक्वेशन में P dV की जगह हम क्या लिख लेते हैं, R इंटू dt। dt दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। This is the required relation between Cp and Cv। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब इस इक्वेशन में
Cp, Cv and R have units. कौन से units? Joule per mole per Kelvin. The joule is the unit of work. तो यहाँ पर ये रिलेशन. अब क्या है कि if Cp and Cv have means are in calories per mole per Kelvin. अब अगर ये कैलोरीज में हो Cp और Cv और R किस में है? R is in, this is joule per mole per Kelvin. ये तो जाउल्स में है. अब ये जाउल जो है वो कन्वर्ट करेंगे हम कैलोरीज में और हम क्या लिखेंगे? रिलेशन क्या बन जाएगा? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R ओवर J. J इज Joule's mechanical equivalent of heat. J is equal to 4.18 joule per calorie. Actually यहाँ पर क्या हो रहा है? जाउल कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं? 1 calorie equal to 4.18 joule. 1 joule is equal to 1 over 4.18 कैलोरीज. तो यहाँ पर हमने R की जगह R ओवर R को डिवाइड कर दिया 4.18 से या J से. चलिए अब एक चीज और देखते हैं. Cp माइनस Cv हमने अभी डिराइव किया R. अगर इसको डिवाइड कर दें बाय M. M क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस. इधर R भी डिवाइड हो जाएगा M से. तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा? स्मॉल Cp माइनस स्मॉल Cv इक्वल टू R. This R is gas constant for 1 gram of gas. और अगर Cp और Cv कैलोरीज में हो तो उसी तरह से रिलेशन क्या आ जाएगा? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R ओवर J. So this is all about the relation between Cp and Cv. Thank you.